So guys, we completed futures. The next part that we are starting is options. The last part basically of your chapter known as derivatives, and the part is known as options. Options mein, what am I gonna revise with you guys is introduction, parties to options, then we have calls and we have puts, then we have strategies if you remember to options, then we have hedging on options, and finally we have valuation of options. Now these are all the parts that I need to do with you guys for options. First one, options itself, options mein introduction. Now what is an option? The name itself is very clear, guys. I have an option. Option is a right, but not an obligation to buy or sell a commodity at a predetermined price. Is a right but not an obligation. So I may buy, I may not buy a commodity, or I may sell or may not sell a commodity at a predetermined price. That is an option. Confused? I'll take up the same example that I've given you in a short book, guys. For example, let's say today morning I went to my classes to take a lecture. Of course, I go up very early in the morning 6:30. I leave my home every day nowadays. But while going, there was a showroom of a bike, and antique bikes, they were like on the showroom. It was a glass showroom. The glass was open and I could see it inside. And I saw a wonderful bike, lovely bike. And you know, dil aa gaya us bike pe apna. So while completing the lecture and coming back home, I thought of dropping down to the showroom and buying the bike. Now when I went to the showroom, asked the person who was holding that entire showroom, कि भाई ये bike खरीदना है. How much are you selling it at? And he told me that the bike is available at 5 lakh rupee. 5 lakh rupee. यार ये 5 लाख सुन के ना अपना पूरा जो प्लान था ना वो सब फ्लॉप. 5 लाख कहाँ से लेके आएगा यार एक दिन में. सो पर बाइक बहुत अच्छा था. तो व्हाट आई टोल्ड हिम that see yaar, right now I don't have 5 lakh. I'll work very hard for 3 months. I'll take more lectures, I'll record more lectures, you people will buy more lectures from me, and I'll collect this 5 lakh and come back and buy. He says, sir, I cannot wait for you for 3 months. है ना? He's right also. उसके पास कस्टमर आएगा, कोई खरीद के चला जाएगा तो मेरा क्या होगा. Now I want that person to wait for me for 3 months. So what I told him is यार भाई ले ये 10,000 ले ले, take 10,000 from me and wait for me. Wait for me for 3 months. And now this is not an advance that I'm giving to him, guys. Because at the end of 3 months, I may be able to collect 5 lakhs. I may not be able to collect 5 lakhs. If I'm able to collect, I'll buy it. If I'm not able to collect, I may not buy it. So I don't want to take up an obligation, but I want to also have a right that I may buy. To buy this right, I'm giving him 10,000. This 10,000 is not an advance payment. This 10,000 is for him to wait for me for 3 months. मुझे चाहिए कि वो मेरे साथ 3 महीने तक वेट करे. And after 3 months, if I go and buy the bike, I'll have to pay him full 5 lakh, not 4 lakh 90. Now people start thinking, sir, वो 10,000 गया वो तो waiting का था. Are you clear with that one? And now in this 3 months, I'm working and I come to know also that bike is very wonderful, antique है. मैं उसको मार्केट में जाके 5 लाख पे खरीद के 10 लाख पे बेच सकता है. And I am able to collect that 5 lakh. I'll go to him after 3 months, pay him 5 lakh, get the bike, and it's over. But suppose in this 3 months, if I fall ill, touch wood नहीं होना चाहिए, but if I fall ill, if I'm not able to make good sales, if students don't love me, if I'm not able to take so many lectures, if I'm not able to collect 5 lakh, or maybe on the other hand side, I don't want to buy that bike now, I like some other bike. So I may not go to the showroom and buy the bike. In that case, 10,000 जो मैंने उसे waiting period का दिया था, it's gone, out, नहीं मिलेगा वापस. And जैसे ही 3 महीना lapse हो जाएगा, he will cut the deal that we had to wait for 3 months, and he has a right to sell it to somebody else. So that's an option. Option gives you a right but not an obligation to buy or sell a commodity at a predetermined price. Clear? Too good. Introduction के बाद the next part that you have to study is known as parties to option. How many parties do I have to option?
There are two parties to option. One is known as a buyer of an option. One is known as a seller of an option. Buyer and seller. Come back on the side. Options. I will have a buyer of an option or I will have a seller of an option. Buyer of an option means a person who wants the right to buy or a person who wants to sell a right. Right to buy or a right to sell. But right, buyer needs a right. Seller will have an obligation. So in the example that I gave it to you, I had a right to buy and that person had an obligation to sell. अगर मैं 3 महीने के बाद जाएगा तो I'll have to pay him 5 lakh and buy it. He will have to sell it. अगर मैं 3 महीने के बाद नहीं जाएगा तो वो right खत्म हो जाएगा. But buyer will have a right and seller will have an obligation. So buyer of a option, seller of an option. One thing that you have to remember, for buyer of an option, to buy anything, to buy a right, can I say I'll have to pay an upfront payment and that upfront payment will be known as premium. अब जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बाइक वाला, दैट मीन्स कैन आई से यहाँ पे मुझे 10,000 पे करना पड़ा उसे. एंड व्हाट इज दिस 10,000 जो मुझे उसे पे करना पड़ा? इट्स नथिंग बट अ प्रीमियम. Buyer will have to pay a premium, seller will receive the premium, buyer will have a right, seller will have an obligation, buyer can only win, seller can only lose. That's known as parties to option. Acha. Then types of options. Now we have got two types of options. The next part, calls and put. So आपने full lectures में देखा होगा, मैंने आपको ये समझाया call and put. Two types of option. First one, call option. Second one, put option. Call option, put option. Call option works only upside. Put option works only downside. Call option मतलब अगर शेयर प्राइस बढ़ेगा फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड प्राइस तो कॉल एक्सरसाइज करेंगे. कॉल अगर प्राइस नीचे हो जाएगा तो लैप्स हो जाएगा. पुट ऑप्शन इज ऑपोजिट. पुट वर्क्स ओनली डाउनसाइड. सो प्लीज याद रखो, कॉल वर्क्स ओनली अपसाइड, पुट वर्क्स ओनली डाउनसाइड. Now, depending upon who's a buyer and who's a seller, caller, that is call option, if he is a buyer, it is known as C plus. If he is a seller, it's known as C minus. Put option में अगर buyer आ जाए तो it is P plus और अगर seller आ जाए तो it is known as P minus. C plus, C minus, P plus, P minus. C प्लस का मतलब बायर ऑफ अ कॉल, C माइनस का मतलब सेलर ऑफ अ कॉल, P प्लस मतलब बायर ऑफ अ पुट, P माइनस मतलब सेलर ऑफ अ पुट. सिंपल ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस फॉर? अच्छा, एक एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ हाउ द थिंग्स विल फंक्शन. सपोज देयर आर टू पार्टीज, वन इज X एंड सेकेंड वन इज Y. X is a buyer of a call, he's gone C plus. So Y is definitely gone C minus. He's purchased a call on share of Reliance at 150. Reliance के शेयर पे 150 के करंट प्राइस पे मैंने कॉल खरीदा है. कितने पे खरीदा है? 150 पे. Are we clear? Call. Now what do you mean by 150 पे कॉल खरीदा? That means इसको एक राइट चाहिए था कि शेयर प्राइस बढ़ेगा, 150 से ऊपर आएगा. ये एक ऑब्लिगेशन सफ़र कर रहा है that anything above 150 he will have to pay to him. अच्छा, अब ये कॉल खरीदने के लिए X will have to pay a premium to Y. So let's say X paid a premium of ₹5 to Y. ये राइट खरीदने के लिए. अब राइट क्या है कॉलर के पास या C प्लस के बाद या बायर ऑफ अ कॉल के पास? that he will enjoy everything that is upside. 5 रुपए का प्रीमियम दे दिया, बात खत्म हो गई. नाउ इफ द शेयर प्राइस एंड्स एट 160, X wins 10. If share price ends at 200, X wins 50. If the share price decreases by 150 से 140, तो कॉल लैप्स. ऐसा नहीं कि X को Y को पे करना पड़ेगा, नहीं. कॉल वर्क्स ओनली अपसाइड. प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल एक्सरसाइज होगा, प्राइस नीचे जाएगा तो कॉल एक्सरसाइज नहीं होगा. इसने 150 पे कॉल खरीदा है,
अगर अभी मार्केट में प्राइस ऊपर चलेगा तो ही विल गो टू बाय एट 150, सेल एट 200. अगर मार्केट में प्राइस ही 140 हो चुका है तो मैं वाई के पास क्यों जाएगा 150 पे खरीदने के लिए? बिकॉज मार्केट में 140 पे मिल रहा है. बायर कैन ओनली विन, seller can only lose. Clear? Call works upside, put works downside. Characteristics learn करते हैं. Have a look मैं क्या बोल रहा हूं तुम लोग को. First one, C plus, C minus, P plus, P minus. C plus, who is he? Buyer of call, enjoys upside. Is a buyer of a call, he enjoys upside. Do you agree with that one? Acha. Second, premium will be outflow. Premium will be outflow. Buyer, premium outflow, enjoy. But enjoy what? Upside. Seller, C minus मतलब ये seller है, प्रीमियम इनफ्लो है, एंड ही इज ऑब्लिगेशन टू पे अपसाइड. अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो ही विल लूज बिकॉज ही इज अ सेलर ऑफ अ कॉल. ओके. साइमल्टेनियसली P प्लस, ही इज अ बायर ऑफ पुट, ही हैज अ राइट टू एंजॉय डाउनसाइड. पुट वर्क्स ओनली डाउनसाइड. पुट खरीदा, प्राइस नीचे गया, मजे है, बट प्रीमियम विल बी आउटफ्लो. बायर के लिए प्रीमियम ऑलवेज आउटफ्लो एंड सेलर के लिए प्रीमियम ऑलवेज इनफ्लो. तो इसके लिए ना यहां पे आ जाएगा प्रीमियम इनफ्लो. डू यू अग्री विद दिस? अच्छा, इसके लिए क्या आएगा? ही इज अ बायर ऑफ अ पुट, तो ही इज अ सेलर ऑफ अ पुट एंड ही हैज अ ऑब्लिगेशन टू सफर डाउन साइड. इन अ नटशेल याद क्या रखना है मालूम है? कॉल्स एंड पुट्स. कॉल exercise only upside, call will lapse on the downside, puts are exercise on the downside but they will lapse on the upside. Buyer has a right, seller has an obligation. buyer के लिए premium outflow, seller के लिए premium inflow. Are we clear? Too good. चकास ना. चलो, अभी तुम्हारे इंट्रोडक्शन में आ गया तुम्हारे पास. तुम्हें पार्टीज पता है, तुम्हें कॉल्स एंड पुट्स पता है, और अब मैं तुम्हें लेके जाता हूं कॉल्स एंड पुट्स के थोड़े क्वेश्चंस पे. थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कॉल्स एंड पुट्स, फिर हम लोग थोड़ा आगे आएंगे. तो कंसिडरेशन. फर्स्ट वन, आप देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 15. आई होप अभी तक आप सबके पास ये शॉर्ट बुक आ गया हो. क्वेश्चन नंबर 15. First, Mr. X purchases a 3-month call option on equity shares of RM. Mr. X purchases 3-month call option. So, Mr. X has gone C plus on equity shares of RM Limited at a strike price of 160. Equity shares of RM at a strike price of 160. तो पहले ये सोच लो मिस्टर एक्स ने क्या किया है. मिस्टर एक्स ने कॉल खरीदा 160 पे. 160 पे कॉल खरीदने का मतलब कॉल वर्क्स ओनली अपसाइड एंड आई एम अ बायर. मिस्टर एक्स के हिसाब से शेयर प्राइस ऑफ आरएम इज गोइंग टू राइज. सो इफ द शेयर प्राइस ऑफ आरएम राइजेस, मिस्टर एक्स विंस. इफ द शेयर प्राइस ऑफ आरएम फॉल्स, कॉल विल लैप्स. परफेक्ट है. और मिस्टर एक्स को ये राइट खरीदने के लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, कॉल प्रीमियम इज ₹5. देखो इसका नोटेशन कैसे आता है. C plus 160 @5. दिस इज द नोटेशन दैट यू हैव इन मार्केट. कॉल प्लस कितने पे खरीदा? 160 @5. एक्सप्लेन द पे ऑफ or profit or loss, also called as payoff, to Mr. X if the expiry price happens to be 140, 150, 160, 170, 180. भाई मिस्टर एक्स का क्या होगा? कितना पैसा जीतेंगे, कितना पैसा हारेंगे? If how much he'll win or how much he'll lose if the share price ends at 140, 150, 160, 170 or 180. Now I can create this profit profile
or I can present the answer in two ways. One by creating a profit profile that is stable and one by creating a diagram. So first one, आराम से सोचते हैं, पहले profit profile बनाता हूँ फिर diagram बनाता हूँ. First one, the exercise price, call will exercise or lapse, payoff, उसका premium, उसका net. Exercise price can be 140, 150, 160, 170, 180. Do you agree with that? I am a buyer of a call. मैंने call 160 पे खरीदा था. Call works only upside. So call will lapse, call will lapse, call will lapse, call will be exercised, call will be exercised. Do you agree? Payoff nil, nil, nil. अगर कॉल लैप्स ही हो गया है तो पे ऑफ आने का कोई सवाल ही नहीं होता है. अच्छा, 160, 170, पे ऑफ 10, पे ऑफ 20. अच्छा, पे ऑफ विल बी एन इनफ्लो, पे ऑफ विल बी एन आउटफ्लो, ये आपको सोचना है. पे ऑफ विल बी इनफ्लो और पे ऑफ विल बी आउटफ्लो. एम आई अ बायर ऑफ अ कॉल और अ सेलर ऑफ अ कॉल? बायर. बायर के लिए पे ऑफ इनफ्लो ही हो सकता है और बायर के लिए प्रीमियम आउटफ्लो ही हो सकता है. Premium is 5, so 5, 5, 5, 5, 5. Are we clear? Net minus 5, minus 5, minus 5, plus 5, plus 15. If the share price ends at 140, buyer will lose 5. If the share price ends at 150, buyer will lose 5. If the share price ends at 160, buyer will lose 5. If the share price ends at 170, buyer will win 5. If the share price ends at 180, buyer will win 15. In short ना, buyer अगर हारेगा ना तो खाली प्रीमियम और जीतेगा तो अनलिमिटेड. इसी चीज़ का मैं डायग्राम बनाता हूँ. Have a look at the diagram. परफेक्ट है. सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए, द प्राइस एट विच यू प्ले. प्राइस वॉज 160, सो आई विल स्टार्ट विद द प्राइस. दिस इज द शेयर प्राइस एंड दिस इज द प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट ऊपर, लॉस नीचे. दिस इज अ जीरो फिगर. प्राइस 160, 160 पे -5 था, 160 पे -5, दिस इज -5. 150 पे भी -5, 140 पे भी -5. भाई प्राइस 160 के नीचे रहेगा तो प्राइस -5 ही रहेगा, मतलब लॉस होगा. एंड देन इट गोज अप, सो दिस गोज अप. आर वी क्लियर विद दैट वन? अच्छा, दिस इज अ प्राइस 160. हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब अ पॉइंट वेयर विच वी हैव नो प्रॉफिट नो लॉस. 160 पे 5 का लॉस था, 170 पे 5 का प्रॉफिट हो गया. इन दोनों के बीच में 165 पे नो प्रॉफिट नो लॉस. परफेक्ट है. दिस इज अ डायग्राम फॉर C+. चलो आप अपने बुक्स में चेक कर लो, मैंने यही कराया ना आपको. -5, -5, -5, +5, +15 एंड द डायग्राम 160, 165. डू यू अग्री? जकास. चलो एक बार कॉल्स एंड पुट्स का रिवीजन हो जाए, फिर मैं स्ट्रैटेजीज पे जाता हूं. अभी रिवाइज क्या करना था हमें? कॉल की बात कर रहे थे. कैन आई से वी कैन हैव कॉल के अंदर C+, C-. इफ आई एम अ बायर ऑफ अ कॉल, आई विल एंजॉय अपसाइड एंड द लॉस दैट आई विल मेक, द मैक्सिमम लॉस दैट कैन हैव इज द आउटफ्लो ऑफ द प्रीमियम. सो अगर आप C+ का डायग्राम देखना चाहते हैं, आपका डायग्राम विल बी दिस वन. प्रीमियम आउटफ्लो, प्राइस ऊपर बढ़ेगा तो प्रॉफिट. C- अगर आप याद रखेंगे, ही इज अ सेलर ऑफ अ कॉल. ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू सफर अपसाइड. मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ही कैन रिसीव इज द प्रीमियम. और उसके बाद अगर शेयर प्राइस बढ़ेगा तो ही कैन ओनली लूज. सो फॉर हिम प्रीमियम इज द ओनली इनफ्लो. और फिर अगर शेयर प्राइस बढ़ने लगेगा, दिस आर द प्राइस ऑफ द शेयर, तो ही कैन ओनली लूज. दिस इज अ डायग्राम ऑफ C-. Next one, P+. Buyer of a put. If a person is buying a put, तो उसके लिए आउटफ्लो प्रीमियम होगा. पुट, बट पुट का मतलब ये एंजॉयज डाउन साइड. तो अगर शेयर प्राइस नीचे जाएगा तो वो जीतेगा, अगर शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो वो हार रहा है. द ओनली थिंग दैट ही कैन लूज इज अ प्रीमियम. सो यहाँ पे ना द लाइन विल कम फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. दिस इज द अमाउंट ही इज लूजिंग.
अगर शेयर प्राइस बढ़ेगा तो वो प्रीमियम हार जाएगा, पर अगर शेयर प्राइस कम हो जाएगा तो ही विल कीप ऑन विनिंग. सो नाउ द प्राइस विल कम. दिस इज अ डायग्राम फॉर P प्लस, लिखा हुआ ऊपर भी. P माइनस का डायग्राम एकदम ऑपोजिट जाएगा. He can gain only premium from the back side and he can lose. So this is a diagram for P minus. दो चीज़ क्लियर कर दो ताकि आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आए. Buyer and seller. Buyer can only win, seller can only lose. Buyer can have only positive payoff, seller can have only negative payoff. Buyer will always have outflow of premium, seller will always have inflow of premium. Is this clear? Too good. चलो, this completes my calls and puts. हम आगे जाते हैं और अब मैं आपको सिखाता हूँ strategies using options. Strategies using options. Guys, there are 3 types of strategies that we can have using options. Strategy using options. 1, 2, 3. Okay, what are the strategies that we can have using option? The first one is known as combinations. The second one is using spreads. And third one is synthetic strategies. Combination का मतलब है call and put साथ में use करना. Spreads का मतलब है only calls, only puts. Synthetic calls, puts मतलब options के साथ हम लोग और कुछ use करेंगे. Are we clear with that one? So we have combination, we have spreads and we have synthetics. Perfect है. Combinations, if you remember, for combinations I taught you 1, I taught you 2, I taught you 3, I taught you 4 combination strategies. Do you remember this? The first one, combination mein, if you remember, was straddle. Second one, strap. Third one, strip. And fourth one, strangle. याद आ रहा है? Straddle, one call, one put. Straddle मतलब take a walk in a park. मेरे words याद हो तो. So I'll have one call, one put at same strike price. अच्छा, यहाँ पे mentality आना था कि buy करना या sell करना. So guys, if I have a volatile thinking, I'll buy. If I have a non-volatile thinking, I'll sell. Straddle V, inverted V. V मतलब buy, inverted V मतलब sell. Correct? स्ट्रैडल के बाद था स्ट्रैप. स्ट्रैप मैंने आपको क्लियरली समझाया था, दैट मीन्स वेयरिंग द क्लोथ्स, दैट इज नोन एज स्ट्रैप. 2 calls, 1 put at a same strike price. Volatile buy, non-volatile sell. Strip, कपड़े उतारना, that is strip. 2 puts, 1 call. Volatile buy, non-volatile buy, sell. वॉलेटाइल बाय करोगे तो V बनेगा, नॉन वॉलेटाइल सेल करोगे तो इन्वर्टेड V बनेगा. एंड थर्ड वन स्ट्रैंगल U बनाने का है. U बनाने के लिए 1 call, 1 put but at different strike prices. And the slogan that I told you to remember was call at higher E, put at lower E. Call at higher E, put at lower E. So guys, combination, there are 4 strategies. First one, straddle, strap, strip and strangle. Have a look at the question or have a look at the theory that I have given to you in that book. Combination, straddle, 1 strike price, 1 call, 1 put. Strip, 2 puts, 1 call. Strap, 1 call, 1 put, 2 calls. Strangle, 2 strike prices, put at lower E, call at higher E. Got that? Too good. बाय या सेल डिपेंड्स अपॉन आपको वॉलेटाइल बनाना है, आपको नॉन वॉलेटाइल बनाना है. एक क्वेश्चन रखा है मैंने आपके लिए, देखो नेक्स्ट पेज पे लिखा भी हुआ है मैंने. इफ़ वी हैव वॉलेटाइल बिलीफ वी शुड गो लॉन्ग, दिस विल क्रिएट वी एज अ डायग्राम. इफ़ वी हैव नॉन वॉलेटाइल बिलीफ वी शुड गो शॉर्ट एंड दिस द डायग्राम विल बी इन्वर्टेड वी. क्वेश्चन नंबर 16. 3-month options on the stock price of SBI. Strike price 2,500. Put premium 220. Call premium 200. Design long straddle. Long straddle बनाना है. Combination में question number 16 में long straddle. Long का मतलब है buy. Straddle का मतलब है 1 call 1 पुट. वॉलेटाइल का मतलब है बाय,
नॉन वॉलेटाइल का मतलब है सेल, लॉन्ग का मतलब है बाय, शॉर्ट का मतलब है सेल, स्ट्रैडल का मतलब है वन कॉल वन पुट, स्ट्रैप का मतलब है टू कॉल्स वन पुट, स्ट्रिप का मतलब है वन कॉल टू पुट्स, स्ट्रैंगल का मतलब है वन कॉल वन पुट बट एट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस, कॉल एट लोअर ई, पुट एट हायर ई. सॉरी, उल्टा बोला मैंने, पुट एट लोअर ई, और वी कैन से कॉल एट हायर ई एंड पुट एट लोअर ई. गॉट दैट? ओके. नाउ ये डिजाइन करते हैं. बाई करना है वन कॉल वन पुट, वन कॉल प्रीमियम 200, पुट प्रीमियम 220. यू आर बाइंग at a strike price of 2500. if I'm buying, कॉल खरीदना है आउटफ्लो, पुट खरीदना है आउटफ्लो, माई टोटल आउटफ्लो विल बी 420 रुपी. मुझे कॉल और पुट दोनों खरीदने के लिए 420 रुपी का आउटफ्लो होगा. दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट आई कैन लूज. डू यू अग्री? ओके. और उन्होंने बोला है अभी प्रॉफिट प्रोफाइल बनाओ, स्ट्रैगल बनाओ. सो मैं प्राइजेस डिसाइड करता हूँ. I can do two things. One is profit profile and one is the diagram. Exercise price. वही प्राइस ले रहा हूँ जो मैंने आपको solutions में दिखाया. Starting from 2000, 2250, 2500, 2750, 3000. स्टूडेंट्स को ऑलवेज एक क्वेरी होता है यहाँ पे, दैट सर ये प्राइजेस आप कैसे डिसाइड करते हो? भाई एक चीज़ याद रखना है, 420 मैक्सिमम आउटफ्लो है आपका. सो 420 को कवर करना है. 2500 प्लस 420, 2500 माइनस 420 कवर करके ऊपर नीचे चले जाओ. परफेक्ट है? ओके. और आप C प्लस गए हो, P प्लस गए हो, तो सबसे पहले कॉल, एक्सरसाइज और लैप्स, पे ऑफ. पुट, एक्सरसाइज और लैप्स, पे ऑफ. प्रीमियम एंड नेट. आर वी क्लियर विद दैट वन? टू गुड. फर्स्ट वन, कॉल 2500. Call means anything over and about 2500. Call 2500 के ऊपर. Okay. 2000 call laps, 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 exercise, payoff, out, 250 and 500. Do you agree? You are a buyer of a call or you are a seller of a call? Buyer. So payoff can be only inflows. Put at 2500. Downside, exercise, labs. Do you agree with that? Payoff 2500 and 2500, 250 out. Guys, put exercise is only downside. मतलब अगर शेयर प्राइस नीचे जाएगा तो ही पुट एक्सरसाइज होगा. तो यहाँ पे अपने को सोचना है 2500 पे पुट मारा, उससे कितना नीचे गया? 2000 पे गया तो 500 रुपया. अच्छा, पुट खरीदा था कि बेचा था? खरीदा था, तो ये भी इनफ्लो. कॉल पे ये भी इनफ्लो, पुट पे ये भी इनफ्लो, और ये दोनों खरीदने के लिए 420 का आउटफ्लो था. 420, 420, 420, 420, 420. डू यू अग्री विद दैट? 500 माइनस 420, 80 का प्रॉफिट. 250 एंड 420, 170 का लॉस, 420 का लॉस, 170 का लॉस एंड 80 का प्रॉफिट. और यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आप देखो, आपका मैक्सिमम लॉस 420 एंड प्रॉफिट 80 दिख रहा है. मैक्सिमम लॉस यहाँ पे आ गया 420, 420 के ऊपर प्रॉफिट, 420 के नीचे प्रॉफिट. सो दिस इज 420. अपने को ये दो पॉइंट्स भी ढूंढना है, जीरो कहाँ पे आएगा? सो 2000 प्लस 80, तो अपना शेयर प्राइस, नाउ दिस शेयर प्राइस वाज 2500. 420 का लॉस है, मैं यहाँ से हटाता हूँ. आई एम जस्ट राइटिंग इट ऑन अ प्रॉपर लेवल. दिस इज 2500, दिस इज 2080 एंड दिस इज 2920, और उसके ऊपर प्रॉफिट V बन गया. दैट इज वॉलेटाइल स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैडल. पक्का? टू गुड. अभी आ जाओ फिर से एक बार यहाँ पे. कॉम्बिनेशंस. कितना कॉम्बिनेशन सिखाया मैंने आपको? 1 2 3 4. व्हाट इज 1? स्ट्रैडल. लॉन्ग स्ट्रैडल, बाय कॉल, बाय पुट, सेम स्ट्राइक प्राइस. शॉर्ट स्ट्रैडल, सेल कॉल, सेल पुट. स्ट्रैंगल, कॉल एंड पुट बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस. स्ट्रैडल अलग है, स्ट्रैंगल अलग है. स्ट्रैप, 2 कॉल्स 1 पुट. स्ट्रिप, 2 पुट्स
1 call. Volatile buy, non-volatile sell. चकास, वेरी गुड. नेक्स्ट वन. तो ये हो गया अपना कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजीज. कॉम्बिनेशन के बाद हम लोग जाते हैं स्प्रेड्स पे. अच्छा, स्प्रेड्स याद है गाइस तुम लोग को? वी कैन डू द स्प्रेड. यहाँ पे कॉल्स एंड पुट्स साथ में यूज नहीं होंगे. वी कैन हैव ओनली कॉल्स और वी कैन हैव ओनली पुट्स. दैट वाज इन स्प्रेड्स. कॉम्बिनेशन में क्या था मालूम है? कॉल एंड पुट. स्प्रेड में क्या है? ओनली कॉल्स ओनली पुट्स. डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइजेस वी कैन हैव 2 स्ट्राइक प्राइजेस पे बुल एंड बेयर, 3 स्ट्राइक प्राइस पे बटरफ्लाई, 4 स्ट्राइक प्राइस पे कॉन्डर और 5 स्ट्राइक प्राइजेस पे मैंने कभी भी कहा था नाम नहीं रखा है, आप अपना नाम रख सकते हो. फर्स्ट वन, कॉम्बिनेशंस हो चुका है स्प्रेड्स पे. 2 स्ट्राइक प्राइजेस. I can have bull spread, I can have bear spread. Bull spread, call and call ही यूज़ करना है, put and put ही यूज़ करना है. So for example मुझे bull call बनाना है. Bull call बनाना है. In that case what will I have to do is C plus and C minus. मतलब कैसे करना है मालूम है? C लिख दो, call and call ही चलेगा. Bull का मतलब पहले प्लस फिर माइनस. सो लोअर स्ट्राइक प्राइस पे कॉल प्लस करेंगे, हायर स्ट्राइक प्राइस पे कॉल माइनस करेंगे. अगर मुझे बुल पुट बनाना है तो सिंपल पहले पी लिखो और बुल बनाना है तो प्लस माइनस. अगर गाइस बुल नहीं बेयर बनाना है तो माइनस प्लस. बेयर कॉल बनाना है तो कॉल माइनस एंड देन प्लस. दैट इज बुल एंड दैट इज बेयर. Have a look at the question for bull and bear. Question number, I guess, 17. Consider 3-month options on Nifty. Strike price 5,400, strike price 5,700, call premium 240, call premium 100. So सबसे पहले आप क्या कर लो मालूम है ये कॉल या पुट करने के लिए? फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17. स्ट्राइक प्राइस 1, स्ट्राइक प्राइस 2 अरेंज कर देना. S1 will be always lower strike price, that is 5,400. S2 will be higher strike price, that is 5,700. अच्छा, continuation. Design and explain bullish call. Call spread बनाना है तो C and C. Bullish call बनाना है तो plus and minus. मतलब I will go C plus on 5,400, I'll go C minus at 5,700. Clear? Okay. Premium. Call premium is 240, call premium is 100. अच्छा, I'm buying this call, premium outflow. I'm selling this call, premium inflow. My net will be 140 of outflow. पक्का? Clear? Too good. Continuation. अब कॉल बनाना है और स्ट्राइक प्राइजेस को कवर करना है. So what you need to remember is 5,400 एंड 5,700 को कवर करना है और 140 मतलब 140 वो बीच में रहेगा. सो पहले डायग्राम, पहले टेबल. एक्सरसाइज प्राइस सी कॉल, एक्सरसाइज और लैप्स पे ऑफ. अगेन कॉल, एक्सरसाइज और लैप्स पे ऑफ. प्रीमियम और नेट. ये कॉल 1 है, ये कॉल 2 है. प्राइजेस इन दोनों को कवर करके साथ में. सो आई एम टेकिंग 5,300, 5,400, 5,500, 5,600, 5,700, 5,800. ये दोनों पॉइंट्स को ही कवर करना है. दैट्स द मेन स्ट्रैटेजी. देयर इज नथिंग एल्स इन द स्ट्रैटेजी. कॉल 1 5,400 का कॉल है. कॉल वर्क्स ओनली अपसाइड. लैप्स exercise, pay off nil. 5,400, 5,500, 100, 200, 300, 400. ये कॉल मैंने खरीदा है, पे ऑफ पॉजिटिव. सेकेंड कॉल 5,700, लैप्स एक्सरसाइज, पे ऑफ आउट 100. एंड ये कॉल मैंने बेचा है तो आउटफ्लो. नेट 140 आउटफ्लो था तो 140 आउटफ्लो, 140 आउटफ्लो, 140 आउटफ्लो, 140 आउटफ्लो, 140 आउटफ्लो.
140 outflow. Net 140 outflow, 140 outflow, 100 and 140. So 40 outflow, 200 and 140, 60 inflow, 300 and 140, 160 inflow, 400, 100 and 140, 160 inflow. My maximum loss is 140, my maximum profit is 160. और बहुत सिंपल था ये याद रखने के लिए भी. 140 आउटफ्लो है, इन दोनों का डिफरेंस 300. 300 में से 140 अगर आउटफ्लो होता है सो 300 माइनस 140 इज 160. इसका अगर डायग्राम बनाने जाऊँ मैं, सो द डायग्राम, फर्स्ट वन 5,400, 5,700. At 5,400 I am 140 outflow. At 5,700 I am 160 inflow. उसके आगे ये ब्लॉक्ड है, उसके पीछे ये ब्लॉक्ड है. We need to find the point of intersection. This is 5,400, this is 5,700. उन दोनों के बीच में 5,540 का intersection. Jackass, this is the spread. First one, bull spread, bear spread. Bull plus minus, bear minus plus. Bull call C plus C minus. Bear call C minus C plus. Bull put P plus P minus. Bear put P minus P plus. Jackass, too good. अच्छा, spread 2 strike price के बाद एक amazing spread आया था, if you remember. That was known as butterfly spread. कौन सा spread? Butterfly. That was 3 strike price यूज करके, and that was known as a butterfly spread. 3 strike price, S1, S2, S3. Only calls, only puts. अच्छा, यहाँ पे bull bear नहीं है, यहाँ पे thinking is volatile, non volatile. Volatile butterfly बनाना हो अगर तो thinking ये जो आती है volatile butterfly, मतलब butterfly बहुत उड़ रहा है, volatile है, बहुत उड़ रहा है, उसे बिठाना है, उसके विंग्स काट दो. विंग्स काटोगे, वॉलेटाइल बटरफ्लाई बनाने की बात कर रहा हूँ. माइनस माइनस तो यहाँ पे 2 प्लस, क्योंकि विंग्स 2 होते हैं, बॉडी 1 होते हैं, तो बॉडी पे जो भी एक्शन करोगे वो 2 बार, 2 प्लस. डू यू रिमेंबर दैट? नॉन वॉलेटाइल बटरफ्लाई बनाना है, नॉन वॉलेटाइल बटरफ्लाई. नॉन वॉलेटाइल मतलब इन्वर्टेड बटरफ्लाई बनता है, नॉन वॉलेटाइल. तो वॉलेटाइल बटरफ्लाई पे बनाओगे ना तो वी बनेगा, वी विथ विंग्स. और नॉन वॉलेटाइल बटरफ्लाई बनाओगे ना तो इन्वर्टेड वी विथ विंग्स नीचे. कॉन्सेप्ट समझा? नॉन वॉलेटाइल बटरफ्लाई बना रहा है, बटरफ्लाई उड़ ही नहीं रहा है भाई, उड़ाना है, कैसे उड़ाओगे? उसके विंग्स खरीद लो, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे 2 माइनस. इज दिस क्लियर? चकास वाला काम हो गया. टू गुड. अभी बटरफ्लाई भी सीख लेते एक बार. एक क्वेश्चन रखा होगा मैंने शायद बटरफ्लाई के लिए भी. हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18. Consider the 1 month options on Nifty. Strike price 5,400, strike price 5,600, strike price 5,800. Call premium, call premium, call premium. Volatile butterfly call spread. क्या करना है तुम लोगों को? पहले S1, S2, S3. S1 स्ट्राइक प्राइस, सबसे लोअर स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए 5,400. S2 5,600, S3 5,800. Is this clear? Okay. Next one, call premium but volatile butterfly बनाना है. आइडियोलॉजी क्या होना चाहिए volatile butterfly बनाने का? उड़ नहीं रहा है, उड़ाना है कि नहीं? वॉलेटाइल बना रहा है, वॉलेटाइल का मतलब ये बहुत उड़ रहा है, उसे बिठाना है, विंग्स काट दो. माइनस माइनस 2 प्लस. कॉल कॉल कॉल, बिकॉज वॉलेटाइल कॉल बनाना है. प्रीमियम 350, 252 इंटू 2 504, 180. जो कॉल खरीदा है दिस इज आउटफ्लो, जो कॉल बेचा है दिस इज इनफ्लो. तो इनफ्लो कितना हुआ तुम्हारा? 350 प्लस 180, 530 माइनस 504,
26 rupee is the inflow. 26 rupee is the inflow. This is my maximum profit. As simple as this. अब डायग्राम टेबल अभी तो तीन कॉल्स है. सो भाई फर्स्ट वन एक्सरसाइज प्राइस 5,300, 5,400, 5,500, 5,600, 5,700, 5,800, 5,900. Do you agree? Call C1 exercise or labs payoff. C2 exercise or labs payoff. C3 exercise or labs payoff. Premium net. C1 5,400 labs exercise out 100 200 300 400 500. ये कॉल मैंने बेचा था पे ऑफ आउटफ्लो. ये कॉल खरीदा है बट एक कॉल नहीं, दो कॉल खरीदा है बट 5,600 पे. लैब्स 5,600 लैब्स एक्सरसाइज आउट 5,700 5,600 100 into 2 200 into 2 300 into 2. दो कॉल खेला है ना. इनफ्लो डबल इनफ्लो कॉल खरीदा है. 5,800 का कॉल वापस भेज दिया. लैब्स एक्सरसाइज. खाली लास्ट वन विल बी एक्सरसाइज. पे ऑफ आउट एंड 100 एंड दिस इज आउटफ्लो. प्रीमियम 26. Do you agree with this one? This is inflow. Net 26 74 outflow. 226 174 maximum loss. 300 226 74. Next one 400 out of 400 gone. 26 and 26. और इसका डायग्राम अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. इट विल बी V with the wings. Is this clear? Too good. कोई डाउट्स आपको? पक्का? ओके क्या था ये? बटरफ्लाई. चलो स्ट्रैटेजीज पे आ जाओ. दिस एंड्स योर स्ट्रैटेजीज. कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी, स्प्रेड स्ट्रैटेजी, सिंथेटिक स्ट्रैटेजी करना नहीं है. कॉम्बिनेशंस में कॉल्स एंड पुट टुगेदर, स्ट्रैडल, स्ट्रैप, स्ट्रिप एंड स्ट्रैंगल. फिर स्प्रेड्स पे बुल, बेयर एंड बटरफ्लाई. फिर से एक बार स्ट्रैडल 1 कॉल 1 पुट, वॉलेटाइल बाय, नॉन वॉलेटाइल सेल. स्ट्रैप 2 calls 1 put, volatile buy, non-volatile sell. Strip 2 puts 1 call, volatile buy, non-volatile sell. Strangle 1 call 1 put, call at higher E, put at lower E, volatile buy, non-volatile sell. Spread पे आके only calls only puts. Bull buy मतलब प्लस माइनस, बेयर सेल मतलब माइनस प्लस. बटरफ्लाई स्ट्राइक प्राइस इज 3 S1 S2 S3. वॉलेटाइल बटरफ्लाई है, विंग्स काटने हैं तो माइनस माइनस 2 प्लस. नॉन वॉलेटाइल है, उड़ाना है तो प्लस प्लस 2 माइनस. चकास. टू गुड. चलो सो गाइज द नेक्स्ट पार्ट दैट इज हेजिंग. अच्छा हेजिंग से मुझे याद आ रहा है कि ये हेजिंग हम लोग ने 2-3 टाइम पहले भी किया हुआ है. एंड वी आर कमिंग टू अ कल्मिनेशन ऑफ हेजिंग. नाउ हेजिंग, if you guys remember, we have done 1 2 3 4 5 6. We did not do 6, we have done 4. आज हम लोग 5 and 6 भी कर लेंगे. दिस इज फॉरवर्ड कवर, मनी मार्केट कवर, F प्लस, F माइनस, कॉल एंड पुट. 6 टाइप ऑफ हेजिंग्स. करेक्ट. अच्छा, first one, if FC is payable, if FC is receivable. As simple as that. If FC is payable, buy FC forward. If FC is payable, money market cover के हिसाब से receivable position बनाओ. Invest करने के लिए, buy करने के लिए borrow. If FC is payable, buy FC, sell home currency.
करेक्ट. FC रिसीवेबल, सेल FC फॉरवर्ड, FC रिसीवेबल फर्स्ट पोजीशन, पेएबल बनाना है, पेएबल के लिए बोरो, सेल, इन्वेस्ट. डू यू अग्री विद दैट वन? FC इज रिसीवेबल है तो क्या करना पड़ेगा FC रिसीवेबल के लिए? फ्यूचर में FC रिसीवेबल सेल FC बाय होम करेंसी. फ्यूचर कवर याद है आपको? चलो लास्ट में आपको ऑप्शन कवर सिखा रहा हूं. ऑप्शन कवर में क्या याद रखना है? एक सिंगल लाइन स्ट्रैटेजी, प्ले ऑन योर फियर, डांस ऑन योर फियर. जिस पे डर लगता है ना उसी पे खेलना है यार, डर निकालना है हम लोग को, है ना. सो व्हाट इज द फियर? फियर इज इफ FC इज पेएबल, द फियर इज FC राइजिंग. So let's play on that fear. If FC rises, I should win. When will I win if FC rises? If I go plus on call. Or if I go minus on put. Put बेच दूँ, प्राइस नीचे जाएगा, प्रीमियम घर पे आएगा. Play on your fear. FC receivable. What is my fear in FC receivable? FC falling. FC falling is my fear. उस पे डांस करने का है. So FC receiving और fall पे डांस करना है. P plus C minus. Either you buy a put or you sell a call. Correct? That's the table. This is basically मजे वाला टेबल. ये टेबल आप मतलब ये पूरा हेजिंग आपको कोई ऐसे टेबल में बना के देना, मैं मान जाऊंगा इस. ओके, एनीवेज लेट्स नॉट बूस्ट टू मच. बैक टू द हेजिंग. अब मैं आपको खाली कॉल और पुट का हेजिंग बताता हूं. हेजिंग FC पेएबल. आराम से सोचो, मेरे साथ डिस्कस करते हुए बोलना. FC इज पेएबल. व्हाट्स योर फियर? FC राइजिंग. FC राइजिंग को एडवांटेज बनाने का है. C प्लस P माइनस. FC रिसीवेबल. FC रिसीवेबल है तो व्हाट इज योर फियर? FC फॉलिंग. FC फॉलिंग को एडवांटेज बनाने का है. P प्लस C माइनस. पक्का? टू गुड. अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको रब कर देंगे एंड वी विल डू वन क्वेश्चन ऑन हेजिंग. मैंने वहां पे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन. सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 19. First, an Indian firm has $2 lakh payable after 3 months. Exchange rates are forecast. Indian firm. So guys, we are in India. We are an Indian firm. $2 lakh is payable after 3 months. After 3 months. That completes my part 1 guys. पहले ये क्वेश्चन को ऐसा फ्रेम अप करना है. अब हम लोग सोचेंगे हम करने क्या वाले. व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी हैव? इफ एन इंडियन फर्म हैज डॉलर पेएबल, FC पेएबल. FC पेएबल को एडवांटेज बनाना, मतलब फियर क्या है? FC राइजिंग. FC राइजिंग को एडवांटेज बनाना है. C प्लस P माइनस. Either you buy a call or you sell a put. Are you clear with that one? देखो क्वेश्चन में दिया क्या है. Exchange rate forecast can be 42, 46, 50 and 58. Probability can be 0.2, 0.3, 0.4, 0.1. Call option on dollar. भाई put option है ही नहीं. Call option is available. Call पे खेलेंगे, call खरीदना पड़ेगा. Call option on dollar at strike price 45 is available for a premium of ₹1.3 rupee per dollar. Evaluate the call cover. First one. Guys, ये पूरे आंसर को 3 स्टेप में दिखाना है. स्टेप 1, एक्शन. क्या करोगे? C plus at a strike price of I guess 45 at the rate rupee per dollar 1.3. कॉल खरीद रहे हो, कॉल बेच रहे हो? खरीद रहे. सो रुपी पर डॉलर 1.3 होगा आपका आउटफ्लो. इज दिस क्लियर? टू गुड. स्टेप नंबर 2, कॉल खरीद लिया. अभी हम लोग सोच रहे कॉल तो खरीद लिया, अब 3 महीने के बाद जब एक्सपायरी होगा, जब FC रिसीव अपना पेएबल आ जाएगा तो हमको कौन से रेट से पे करना पड़ेगा? सो विल हैव टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड स्पॉट. नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड स्पॉट? मल्टीप्लाइड बाय rates, expected rates multiplied by its probability. So 42 into 0.2 plus 46 into 0.3 plus 50 into 0.4 plus 58
into 0.1. Is this clear? Too good. First one, 42 into 0.2. Answer is 8.4 plus 46 into 0.3, 13.8 plus 50 into 0.4, 20 plus 5.8, 8.4 plus 13.8 plus 20 plus 5.8 is equal to ₹48 per dollar. हमें ₹48 पर डॉलर के हिसाब से पे करना पड़ेगा. इट्स पेएबल. डू यू अग्री विद दैट? टू गुड. भाई कॉल खरीदा 1.3 पेएबल 48 के हिसाब से पे करना पड़ेगा. अब जो कॉल खरीदा था स्टेप नंबर 3, वो कॉल में क्या हुआ? डिड वी विन और डिड वी लूज? एक्सपेक्टेड पे ऑफ. सो स्टेप 3 इज एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैलकुलेट करना. एक्सपेक्टेड पे ऑफ. सो एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैलकुलेट करने के लिए एक्सरसाइज प्राइस, कॉल, एक्सरसाइज और लैप्स, उसका पे ऑफ, उसका प्रोबेबिलिटी, उसका पे ऑफ डॉट प्रोबेबिलिटी. द स्ट्राइक प्राइस कैन बी 42, 46, आई गेस 48, not 48, 50, and price can be 56. Call will lapse, will exercise, will exercise, will exercise. Payoff is nothing. 45, 46 is 1, 45, 50 is 5, 45, 56 is 11. 56 है कि 58 है? 58 है. So this is not 11, this is 13. Probabilities are 0.2, 0.3, 0.4, 0.1. Out 0.3, 2, 1.3, 3.6 रुपी पर डॉलर. कॉल खरीदा था. दिस कैन बी और ऑल एक्सपेक्टेड प्राइजेस. भाई क्या हो रहा है अपने को? प्रॉफिट कितने का? 3.6 इन फ्लो. दिस इज 3.6 इन फ्लो. इज दिस क्लियर? टू गुड. फाइनल नेट यहां पे आ जाओ. फर्स्ट वन, कॉल खरीदा था, आउटफ्लो. हाउ मच वाज आउटफ्लो? 1.3. एक्सपेक्टेड स्पॉट सेटल कितने पे करेगा अपना एक्सपोजर? हमें 48. ये भी आउटफ्लो. दिस वाज आउटफ्लो, दिस वाज आल्सो आउटफ्लो. एक्सपेक्टेड पे ऑफ, दिस इज इनफ्लो 3.6, दिस इज इनफ्लो. आउटफ्लो प्लस होगा, इनफ्लो माइनस हो जाएगा. सो गाइस फाइनली वी विल हैव 1.3 plus 48 minus 3.6. I'm getting an answer of rupee per dollar 45.7. Is this clear? Too good. अगर आपने हेजिंग नहीं करा होता तो आपको 48 के हिसाब से पे करना पड़ा होता. अगर आपने हेजिंग करा है तो आपको 45.7 के हिसाब से पे करना पड़ रहा है. सो दैट्स बेटर ना. $2 lakh पे करना है. 2 lakh into 48 was 96 lakh. Now 2 lakh into 45.7 is equal to 91,40,000. Jackass. Too good. Now that's the hedging. एक बार ऑप्शन hedging मैं वापस आपको समझा दूँ. That is call cover, put cover. Play on your fear. FC receivable, FC payable. FC payable, my fear is FC rising. Call plus, put minus. FC receivable, my fear is FC falling. P plus, C minus. The last part of your options, guys, and that is known as valuations. ऑप्शंस को वैल्यू करने के लिए आपके पास दो मॉडल थे. द फर्स्ट वन वाज नोन एज बाइनोमियल मॉडल, द सेकंड वन वाज नोन एज ब्लैक एंड शूल्स मॉडल. बाइनोमियल मॉडल में आई गेस हम लोग को पहले एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना था. फॉर्मूला सिंपल था, P इज इक्वल टू R माइनस डी U माइनस डी. उससे प्रोबेबिलिटी मिलेगा. फिर हम कॉल और पुट की वैल्यू निकालेंगे. दैट इज एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स डिवाइड बाय RF. एंड ब्लैक एंड शूल्स गाइस एक फॉर्मूला है, रट के जाना है. फॉर्मूला मैंने आपके बुक में रखा है. इज दिस क्लियर? सो मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं रखा है. ऑप्शंस, बाइनोमियल मॉडल एंड ब्लैक एंड शूल्स का प्लीज़ आप रीड करेंगे उसे. मैं पूरा डेरिवेटिव्स वन शॉट आपके सामने पड़ा है. पार्टिसिपेंट्स कर लिया हम लोग ने. फॉरवर्ड रेट, अग्रीमेंट, स्वैप्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस ऑल क्लियर. दिस इज एंड टू डेरिवेटिव्स. लेट मी स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक गाइस. थैंक यू एवरीवन.